Hello, Profiteers. I hope you like this different look. I don't think it matters because all my subscribers majorly focus on, and that's the best part. We focus mostly on content and analysis. So I don't bother about external looks and matter, the jazz background, theek hai ki nahi, and all that. I don't matter too much. Doesn't matter to me. So today in this video, in a different look because it was the weekend, I just thought I'll tell you three good reasons why I confidently feel three reasons that we are in a structured bull market and Nifty can correct from here, but we really don't think that it's going to crash from here at least till the next 3 years conveniently. Actually, there are many reasons, but I have found out three interconnected reasons which I have collected in my analysis from various geniuses, economists, these Nobel laureates, the way they speak about economy, फंड मैनेजर्स, जितने भी इंटरव्यूज़ जितने भी रिव्यूज़ हम लोग देखते हैं उसमें से कुछ निकाला है. सो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू एंड यू कैन ऑल्सो पुट इन योर कॉमेंट्स and tell us whether you agree or what is your opinion on that. So reason number one, very clearly, guys, 7 crore Indians are invested, 7 crore people are invested in the Indian equity markets. This data was released by the stock exchanges a week back, and interesting point to note is from 5 crore to 6 crore the journey took around 2 years or something. लेकिन 6 करोड़ से 7 करोड़ का जो जर्नी हुआ है लास्ट ईयर में, इट हैज़ कम इन 5 months, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, it's all because of that. So that's the first major reason. Connected to the first reason is a point which I had mentioned in one of our earlier videos, is that the liquidity, the Federal Reserve of the US has already last year given its indication that they are not going to they're not going to increase, interest rates. Interest rates are going to be stable. Liquidity बहुत है सिस्टम में, पैसा घूम फिर के मार्केट्स में ही आ रहा है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई करियर ऑल्सो. आई हैव बीन ट्रैकिंग मार्केट्स इन लास्ट 25 ईयर्स. मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स आर वर्किंग इन टैंडम. मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड कोऑर्डिनेशन में सब लोग चाइना का थ्रेट मानते हुए एक सिंक्रोनाइज वे में अपना लिक्विडिटी रिलीज़ कर रहे हैं. एंड इवन आवर कंट्री इज़ नॉट फार बिहाइंड, क्योंकि जो रिजर्व बैंक है वो एक सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं. सब ने एक्सेस लिक्विडिटी सिस्टम में दी हुई है. नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट 3 years. तो जहाँ क्लासिक साइन ऑफ अ बुल मार्केट है ना, जहाँ सिस्टम में लिक्विडिटी आती है, ईजी मनी फ्लो करता है, लोन ईजिली मिल रहा है. I mean, this is the cheapest you can get home loans and all kinds of different loans. In fact, cheap money, cheap labor available है. Cheap oil also to an extent जब available है. These are classic signs कि जब तक पैसा आएगा वो पैसा घूम फिर के इक्विटी में ही आने वाला है ग्लोबली, राइट. उसके बाद द सेकेंड पॉइंट विच आई हैव इज़ कॉरपोरेट प्रॉफिट टू GDP रेशियो. सो अगर आप देखो ध्यान से, this is a very interesting point I found in one of the analysts speaking quite some time. Corporate profit to GDP ratio जो है हमारा 2003 to 2007 was a major bull run. I think after the Harshad Mehta episode and after that bull run, जो next major bull run आया था वो 2003 to 7 था. वो 5 साल बिफोर द GFC, द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जो 5 साल पूरी दुनिया ने ग्रोथ देखी है. आई मीन दैट काइंड ऑफ ग्रोथ we have never seen any time else. In those 5 years, आप people had got a Midas touch in those 5 years. जिस चीज़ पे आप हाथ लगा रहे हो वो सोना हो रही है, जिस स्टॉक को हाथ लगा रहे हो 20 गुना बढ़ गया, 20, 30, 40 times हो रहा था. That was the sheer liquidity and momentum in that 5 years. That time, 2002, after the bear market ends and before 2003 bull market started, the corporate profit to GDP ratio of India was 2.5%. At the peak of 2008 financial crisis, I mean at the peak of the bull run, जब bull run ख़त्म हुआ उसके just पहले, corporate profit to GDP ratio was 7.5%. India का corporate net profit to GDP ratio was 7.5%. Guys, today it is again hovering around 2.5 to 2.7%. अगेन अ पॉइंट ऑफ अ क्लासिक बुल मार्केट रन. यहाँ से इसका मतलब ये है कि अभी हमारे कॉरपोरेट्स का जो नेट प्रॉफिट है वो बनना शुरू हुआ है.
ये 15,000 तक का निफ्टी इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ मल्टी ईयर स्ट्रक्चर्ड बुल रन। मैं वापस वो वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ से जो बड़ी कंपनीज़ है वो अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट करने वाली है, एंड वो नेट प्रॉफिट स्काई रॉकेट होता हुआ दिख रहा है हम लोग को। वी कैन सी दैट द प्रॉफिट इज स्काई रॉकेटिंग, नंबर्स आर फिनोमिनल। लुक एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स, आप खुद क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, जो मैं कवर करता हूँ, हम सब कवर करते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है। इफ़ यू लुक अराउंड द क्वार्टरली रिजल्ट्स, I mean even in the bad times, look at the kind of results these companies are posting, you know। तो यहाँ से एक शूट अप मिलता है नेट प्रॉफिट को। तो कॉरपोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी, ये जो रेशियो है, जो फ़िलहाल 2.5, 2.6, 2.7 के रेंज में है, ये वापस यहाँ से ऊपर 7.5 तक की जर्नी आपको दिखा रहा है अगेन, विच इज़ अ साइन ऑफ अ बुल मार्केट। So this was the second major reason, and the third major reason which is connected to the second point, actually all these points are interconnected, इसमें आप एक लेवल पे इसको नहीं देख सकते, ये सब साथ में कनेक्टेड है। The third point is guys कि पिछले 10 साल से जो हमारी कंपनीज़ की बैलेंस शीट है, वी हैव एक्चुअली गॉन थ्रू अ बैलेंस शीट रिसेशन। यू नो, जैसे बहुत सारे फंड हाउसेस में एक टर्म यूज़ होता है, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। वो टर्म होता है बैलेंस शीट रिसेशन। बैलेंस शीट रिसेशन का मतलब कंपनी ऊपर ऊपर से आपको दिखती है कि पैसा बहुत कमा रही है, लेकिन ऑन द बैलेंस शीट देयर इज लॉट ऑफ वीकनेस, एसेट्स आर स्ट्रेच्ड, यू नो, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो वो चीज़ें सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ने वाले को समझ में आती है। तो पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस शीट इंप्रूव नहीं हो रहा था, यू नो, प्रॉफिट्स भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, वो अब एक बूस्ट आया है, बट बैलेंस शीट वॉज अ क्राइसिस। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, हर सेक्टर की जो टॉप कंपनी है उसका आप बैलेंस शीट देखिए, लुक एट द प्रोविजनिंग दैट दे हैव डन, लुक एट द बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट्स दैट आर कमिंग। तो अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट साथ साथ इंप्रूव करता हुआ दिखेगा आपको, एंड बाय दीज टू मूविंग अपवर्ड्स यू विल फाइंड एन अपवर्ड मूवमेंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब ये तीनों चीज़ें एक साथ, पूरा कारवां एक साथ चल रहा है, एंड दैट्स वाई अगेन आई एम सेइंग कि ये चांस है कि अच्छे टॉप कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करें, अपना एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाया जाए, उस पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्ट कीजिए, एंड डोंट, यू नो, आई डोंट वांट एनीवन टू मिस दिस चांस। अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं तो सिप कीजिए, SIP रेगुलरली इज़ द बेस्ट वे। ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक अ डिसेंट पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। मैं फिर कह रहा हूँ, एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो अगर आप बना लेते हो, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट इवन इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, राइट? So it's all about making that viable portfolio. Guys, keep profiting, have a good weekend. कल से वापस back to pavilion, the markets will be on. Actually Saturday Sunday किसी भी आप analyst, trader या किसी से भी पूछो तो Saturday Sunday becomes very boring because markets on रहते हैं, तो you know there is momentum. So I wish all of you a great week ahead, and please remember, keep profiting.